हाँ सर, ये प्री मार्केट जो वॉल्यूम होता है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, एचडीएफसी का हमेशा बड़ा ही रहता है, हाँ टॉप पे रहता हाँ, तो बेसिकली उनका वो जो ऑब्जर्वेशन था कि एचडीएफसी को खरीद बेच के वी कैन इजीली मैनिपुलेट। अगर आप एचडीएफसी के साथ आईसीआईसीआई एक्सिस जोड़ोगे तो द वेटेज बिकम्स इवन मोर, लाइक 30-35% तक पहुंच जाता है। तो तो उनका सर ये जो ये सर बताइए। तो उनका ये जो ऑब्जर्वेशन था कि सिर्फ ये दो स्लिप को खरीद के बेच के यू कैन इजीली मूव द इंडेक्स एंड देयर बाय मूव डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंग टू व्हाट योर पोजीशन इज। तो उन्होंने बोला कि ये कंसंट्रेशन जो है उसको हटाना चाहिए। तो बेसिकली दो रूल्स लेके आए वो लोग कि कोई भी अगर इंडेक्स में डेरिवेटिव ऑप्शंस है, मतलब डेरिवेटिव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो वाले इंडेक्स में 13 से कम नहीं होने चाहिए स्टॉक्स। दैट इज द फर्स्ट रूल दैट दे हैव ब्रॉट इन, कि रिप्रेजेंटेशन 13 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड देन एनी गिवन टू स्टॉक्स कैन नॉट हैव वेटेज मोर देन 20 और 17%, कुछ तो उनका वो दूसरा रूल है। तो बेसिकली दोस टू रूल्स लेके आए वो लोग। तो इस ये रूल्स को इम्प्लाई करने के लिए इनिशियली वो लोगों ने अक्टूबर एंड तक का टाइम दिया था, बट देन सब स्टेक होल्डर्स ने थोड़ा और टाइम मांगा उनको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए, तो अभी वो पुश करके मेरे ख्याल से मार्च तक किया है। तो सर इससे स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम होगी, बैंक निफ्टी के वो ट्रेडेबल नहीं रहेगा, या फिर उस या वो स्पीड नहीं रहेगा, मतलब नहीं हाँ, वॉलेटिलिटी। स्पीड नहीं रहेगा। प्रीवियसली बैंक निफ्टी का स्पीड इसलिए था क्योंकि वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स था कि अंडरलाइंग सिक्योरिटीज थोड़ा भी मूव करेंगे तो वो मूव कर जाता। अगर बैंक निफ्टी भी निफ्टी जैसे बिहेव करेगा, निफ्टी जैसा आराम आराम से आता है, आराम आराम से आता है, बैंक निफ्टी वैसे ही होगा। अच्छा, अब यानी उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी ज्यादा। नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू। Fine. Hi everyone. We'll start off with our monthly. Since we are going to start enter into a new month, we'll start off with our monthly forecasting, then weekly, and then we'll see what is going to happen on Monday and the coming days in next week. Next week, Wednesday being an holiday, is a very truncated week. I mean, 4 trading days, and that too one expiry Tuesday. So effective trading days are three. If in the last meeting you guys remember, we had discussed the trading range for the last 15 days of the month would probably be in this box, which has come out more or less to be true. It just closed about 50-60 points below the box, but most of the time it was trading in this box, like how we thought. Now that this has happened, the significance of this box is gone. Monthly, just because there has been a slight sell off at the top, I don't think we'll eventually break out in this month. This month might again be a consolidating month where we initially start off, go down, and then somewhere go up, test that 25,900 or 800 or something, and then again close in the same level is what I am predicting for this month. So I'm not that bullish or that bearish in this particular month. I expect something like this to happen here, like fall down, go up, and then close in the middle, something like that to happen over here. With that in mind, let's see weekly. Weekly is a clear bias towards sell side. There are two shooting stars now. I mean, although this candle was not a perfect shooting star, it was just a red sort of a gravestone doji, but then this is a proper shooting star. Now, two rejection candles from the top near all-time high, we cannot ignore that sell signal. As and when this level is taken out, 25,700 to 720 will go short. The first resistance or per se support I see is this 25,660, but this should not be such a strong support that we can consider going long from this point. And based on early indications, Gift Nifty is already showing 100 points gap down. So if it opens 100 points gap down, it will anyway open below this particular thing, 25,660. If that is the case, and if this gap is not filled and we continue to go down, we'll easily test this trend line which we broke out of before again going upside. So this trend line is somewhere 24,400 to 500. So this week, I think we should at least touch 25,500 before turning back. We'll again see how the market is behaving once 25,500 is touched. Because option chain, you don't have anything yet. Put side is completely, I mean, volumeless. So it's very indicative that the market is anticipating a fall. It is the same across all the expiries. 26,000 next week is still okay, but then mostly throughout the entire expiry, the put side is light. 25,500 is the big support that I see, which is also technically correct on charts. So my immediate target for this week will be 25,500. But then
There is a possibility that after opening here, we can straight away see this level on Monday and Tuesday, and then from Thursday onwards, we again eventually bounce back and close somewhere here. Basically, hammer sort of a candle, strong candle. Things just come back to daily. But this looks like an M pattern, but it's not such a strong M pattern to very confidently go and sell. But this is a selling confirmation. We have two proper candles and then a gap down here. We'll easily come down to test this particular zone before moving out. That is daily. Let's say what then the eventual plan for Monday would be, let's say we open somewhere 100 points gap down, 600 or 630. There is no support nearby. So I only see a small support here, 25,560, but I don't think this is going to hold. If at all 25,630 is the level that we open at, I won't be comfortable shorting right at opening. We'll allow it to retrace a bit, like these levels, 25,700 or 710, and then we can take a short from here till 25,500 for the week expiry or the week. That is the only trade that I see. Now, long trade is not possible until this level is taken out, which is 25,800 to 820. Once this is taken out, we'll go aggressively long because then it can easily test 26 and 2600. But till the time this level is not taken out, 25,800 to 820, no longs, only short. That is for Nifty. You see for Bank Nifty. Bank Nifty was leading all the way this month and this week. And Bank Nifty has a stronger support at this zone. Like Nifty has supports at far away points, about 252, 300 points from here. But then Bank Nifty has a decent sort of a support in this zone. So any fall in Nifty will be arrested by the support on the Bank Nifty. If at all Bank Nifty breaks this support of 57,300 to 350, we can easily see these levels first, 56,800 to 56,900. And if this doesn't hold, then whatever rally it has had, it will eventually come down and meet these levels again, 57, 55, 700 and all that. But based on how banking stocks are behaving and how this has been supporting Nifty for the last 2, 3 days and the last week as well, I don't see such a big fall in Bank Nifty. Probably this is the level till which it can test if at all Nifty decides to visit levels below 25,500. If Nifty is taking support at 25,500, then Bank Nifty will probably test this level and then reverse again. So 57,200 to 57,000 is the level where I see Bank Nifty finding a support before it eventually moves up again. That is for Bank Nifty. Uh, any one of you wants cryptos also? Because I don't see anybody who does crypto now. Then let's skip crypto. Gold, like we discussed last time, it has retraced a lot. It is at a level as per FIBO. It bounced from 50% retracement. It's a good place to buy, but then since this is the first retracement after such a fall, i- in all probability, this level will be tested again before it wants to go up. So if at all gold comes here, again takes a support at this zone, 3,900 or 870, and then goes up, we'll buy once this level is taken out again to test all time high. So that is for gold clear. As of now, gold and silver are not in shorting zones. We'll have to wait whether this is a proper base formation or this is just an inducement to more fall. That will be evident in this week. So once this week is out, then we'll again venture into gold or silver to see whether we can buy or sell them. That is this one. I don't see any other index. So then we'll jump into Q&A only. If any of you have doubts, like how has your trading been the past week, any clarity on the setups that you guys are doing, we'll take those. सर मेरे को 3:30 बजे लगा तो मैं अब भी ज्वाइन हुआ मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ Oh, no तो problem, sir. No problem. फॉरगॉटन थ्री हो No ठीक है problem. सर ये दो लास्ट दोनों एक्सपायरी बहुत ही वोलेटाइल था सर सेंसेक्स वाला और Yes. निफ्टी वाला Yes. Monthly बराबर expiry है था ना सर सर. Monthly expiry था ना सर. हाँ Monthly मंथ expiry and then on top of it movement काफी अच्छा था. तो squaring off and rollovers काफी थे. बोथ साइड
स्टॉप लॉस लेके जा रहे थे बहुत से। हाँ हाँ इसका मीन्स ट्रेंडिंग में नहीं था, थोड़ा भी 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट होता था फिर। यस सर सेंसेक्स का क्या है, मैं एक्चुअली आज पहली बार ये कर किया लास्ट वीक। मैं क्या सोच रहा था कि थर्सडे और फ्राइडे सेंसेक्स और नेक्स्ट 3 डेज निफ्टी किया तो ओके। कैसा लग रहा है सर आपको? सर बेसिकली मतलब मैं क्यों नहीं करता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे दो इंडेक्स एक साथ ट्रैक करना पसंद नहीं है। सेंसेक्स इज ए प्रीटी बिग नहीं नहीं, इंडेक्स एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग, 3 डेज निफ्टी और 2 डेज सेंसेक्स, सिर्फ वो वही देखना है। वही ना सर, वो करने के लिए भी आपको दो अलग अलग इंडेक्स को ट्रैक करना पड़ेगा ना। आई मीन आउट ऑफ द ब्लू आप सीधे चार्ट को देख के अगर आप करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ तो गलत ही रहोगे आप। लेकिन आपको ऐसा यस। करना क्यों है कि 3 दिन सेंसेक्स और 2 दिन निफ्टी? सेंसेक्स नहीं, में वो मूवमेंट के लिए, पकड़ने के लिए, मूवमेंट, सेंसेक्स का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है ना अपना जो, तो इसके लिए। ओके ओके। लेकिन आप बोल रहे हो वो बराबर है सर, मेरे को भी ना ज्यादा ही एक बार, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, इंट्राडे स्टॉक भी ऑप्शन ये करता हूँ, ऑप्शन नहीं, फ्यूचर, तो सर वो उसमें सब से नहीं भी। वो सब नहीं होता है सर, क्योंकि आपका ध्यान इतने जगहों पे होता है, एंट्री हाँ पॉइंट्स ना मिस हो जाएंगे पक्का। My हाँ my ना, only वो my तो only reason to limit myself only to Nifty is because I don't want to miss entry points. I have done that. I have simultaneously tracked many things, and then I was not able to efficiently trade in any of those indices. Like I was tracking Bitcoin, Nifty, Nasdaq, and gold at the same time. I realized I am not able to focus on one index. ये सर, ये तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ यही होता रहे। मैं फिर Yes, वही मैं सोच रहा था कि यार अपन निफ्टी और ये ट्रैक कर रहे हैं, दोनों भी गलत हो रहा है तो। yes, sir, yes. So it's better कि हाउ वाज मतलब योर? हाँ, मेरे लिए तो इट्स दैट हैज ऑलवेज बीन बेटर दैट आई ओनली फोकस ऑन वन इंडेक्स एट ए टाइम एंड देन ट्रेड प्रॉपर्ली। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, जस्ट कीप क्विट। ओके ओके। और हाउ वाज योर सर लास्ट वीक एंड लास्ट मंथ? दिस मंथ वाज टू गुड। अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। ये 5-6 महीने का दे गए एक साथ। ओके। कितने दिन में ऐसा हुआ, कितने दिन में आपको पॉइंट ज्यादा मिले सर? हाँ दिस हाउ मंथ मेनी डेज इन लास्ट मंथ? अभी मैं बरिस्टर साहब को भी बोल रहा था, दिस मंथ आई हैव चेंज्ड स्लाइटली द वे दैट आई ट्रेड। प्रीवियसली जो मैं कहता था कि लंबे लंबे मैं पकड़ता हूँ, दिस मंथ आई हैव चेंज्ड कि आई हैव कॉट ओनली 1 or 2 डायरेक्शनल मूव्स, बट वो भी पूरे एक्सटेंट पे हाँ, नहीं। बट मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स हैव बीन स्कैल्प्स। स्कैल्पिंग कैसे, व्हाट, ये आपका जो स्विंग लो और वो वही क्या, कैसा स्टॉप लॉस सर? हाँ मतलब बेसिकली स्कैल्पिंग इन द सेंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल का ही एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कल ये मेरे कमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्लियरली बताया था पीडीएल से अगर रिवर्स लेता है तो हम लोग बाई करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। तो यही हुआ कि पीडीएल 2 बार तोड़ने की कोशिश की, क्लोज नहीं किया, रिवर्स। तो जैसे ये पॉइंट निकला मैं स्कैल्प किया। जैसे कितने पॉइंट लिए सर आपने? कल इंट्राडे हाई, अभी ये वाले कैंडल जब रिट्रेस मारा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। हाँ तो हाँ, तो बेसिकली वो अगर आप आपका देखोगे सर वो, 880 एंड देन एग्जिटेड एट अबाउट 920, सो 40 पॉइंट के आसपास। हाँ हाँ हाँ। ये एंड जो देन आपने बताया एंड सब देन मैंने भी ट्रेड लिया, मैंने तो, लेकिन मैं होल्ड ही नहीं कर सका, क्या कुछ ऐसे हो रहा एंड देन सेकंड स्कैल्प ये वाले पॉइंट पे ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये जो दो क्लोजिंग थे 5 मिनट कैंडल्स पे, इसको जब तोड़ा दोबारा इधर, तो मैंने यहाँ पे एक और स्कैल्प लिया। है। कोई पी वाला ट्रेड ना? हाँ सी सेल बेसिकली। हाँ, सी एस एल, वही पी बाय हाँ मेरा। हाँ। तो ये जब ट्रेड लिया था तब मैंने वो ग्रुप में कमेंट डाला था कि टुडेस ट्रेड इज रिमाइंडिंग मी ऑफ जेन स्ट्रीट वाला दिन। क्योंकि आप लोग पुराने ट्रेडिंग डेज में जाके देखोगे, दिस वाज वेरी एविडेंट व्हेनेवर जेन स्ट्रीट वाज ऑपरेटिंग। They intentionally हाँ get a big move in the direction opposite to the direction they want the market to take, and then they will pull the market in the other direction. क्योंकि एग्जैक्टली। ये मूव देख के इतने सारे बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, वो लोग निकलते नहीं है। हाँ, और जब निकले तो धड़ाधड़ स्टॉप लॉस ट्रिगर। इसलिए जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदा होगा उन सबका स्टॉप लॉस यही होगा, जैसे मैंने किया था। तो जैसे ये वाला पॉइंट टूटा तो अगेन वेंट शॉर्ट। लास्ट मंथ में कितने पॉइंट्स लिए सर आपने, ये अक्टूबर? लास्ट मंथ में अगर मेरे फुल क्वांटिटी पे देखोगे तो इट वाज अबाउट 300 पॉइंट्स, एंड एक्चुअल अगर
क्योंकि मैंने बहुत सारे दिनों में कम कम क्वांटिटी के साथ किया था, तो अगर वो वाले क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स। वाह, वेरी गुड सर, दैट वेरी गुड। दैट वाज गुड। ये महीना काफी अच्छा था। लेकिन सर आपका जो सबसे मैं देख रहा हूँ सर, पेशेंस में आपको होल्ड करने का जो ताकत है ना, वही आपको पैसा दे रहे हाँ सर, आपको पैटर्न्स, एक दो ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे वो पैटर्न दिखता है, आप भले स्टॉप लॉस जाए, होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस एक बार दो बार जाएगा, क्योंकि आपका जो कंफर्टेबल वाला पैटर्न है वो बार बार तो आएगा नहीं। इट विल बी ओनली इन अ डे और टू दैट यू विल गेट दोस पैटर्न्स, एंड इफ नहीं दोस सर, मेरे पैटर्न्स को आर बोलो विजिबल ना फॉर सर, नहीं बैटमैन। पैटर्न का नहीं सर, मेरे को एक सिखाओ कि मैंने सब ये लास्ट मंथ में ना सर, मैंने 150 क्वांटिटी से लेके 25,000 क्वांटिटी तक किया सर, लेकिन मेरे को सेम ही इश्यू आ रहा है सर। होल्डिंग। हाँ, क्योंकि अभी मैंने समझो 25,000 में किया तो मेरा समझो M2M बहुत दिख रहा है, लेकिन 150 में तो क्या दिखता है सर, लेकिन तभी भी मैं होल्ड नहीं कर सक रहा है, क्या है, कुछ तो वो सिखाओ बस। सर मतलब क्यों होल्ड नहीं कर पा रहे हो आप? एक एक काम क्या कीजिए, पता नहीं अगली सर, बार, क्या है। अगली बार अगली हाँ? आप जब ट्रेड लेने जाते हो तो आपको मन में क्या रहता है कि ये ट्रेड को होल्ड करना है या प्रॉफिट दिखते ही निकलना है? क्योंकि द थॉट प्रोसेस दैट यू हैव बिफोर एंटरिंग द ट्रेड इज व्हाट विल डिटरमाइन वेदर यू आर गोइंग टू होल्ड इट और नॉट। नहीं सर, एवरी डे मैं सिर्फ कंटिन्यूअस एक ही खुद को बोल रहा हूँ कि होल्ड करो, ज्यादा पॉइंट के लिए सर ऐसे वही बोलते वही रहता हूँ, लेकिन करता नहीं सर मैं एक्चुअल में। सर मैं वही बोल रहा हूँ, ये गलत कर रहे हो आप, बिकॉज एवरी डे यू कैन नॉट होल्ड। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि नहीं यू नहीं हैव नहीं, टू। एवरी डे मैं दिमाग को ये कर रहा हूँ कि थोड़ा तो थी 30-40 पॉइंट्स के लिए तो पकड़ पकड़ के रख, और दिख रहा है ना सर रिजल्ट, इट इज गोइंग टू दैट 30-40 पॉइंट्स। वही बहुत बेजर, क्योंकि देखो सर नहीं, उसमें लॉस ही मेरा हो रहा है ना सर। my psyche is like I tell my mind कि I am not going to hold most of the trades, but I'll only hold one or two trades when my that patterns that I recognize comes. Without them, I'll not hold. Not possible. ओके ओके, एक बार एक इसलिए सिखाओ मेरे इसलिए को मैं भी तो। इसलिए मैं भी जब मैं मेरा जब होल्ड करने का इंटेंशन रहता है, आई क्लियरली मेंशन इट इन आवर ग्रुप दैट टुडे इज द डे वेयर यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। और वो बहुत कम ही होता है, अगर आप देखोगे तो महीने में एक या दो बार ही मैं बोलता हूँ कि होल्ड करो। परफेक्ट, बराबर है। क्योंकि हर ट्रेड हम लोग नहीं होल्ड कर सकते, नॉट पॉसिबल। हर ट्रेड बाइंग में होल्ड करना है तो पक्का लॉसेस ही होंगे सर। अभी मैं बोलता हूँ सर आपको, मंथली समझो लास्ट मंथ में मैंने समझो 40 ट्रेड लिए, 35 में मैं प्लस में हूँ, 5 में लॉस में, लेकिन ओवरऑल मेरा महीने का लॉस ही है। ऐसे कैसे सर? ऐसा ही हो रहा है सर, हो भी प्रॉफिट छोटा ले रहा हूँ और लॉस में बड़े लॉस में रुक रहा हूँ मीन्स ऐसे हो रहा है, क्या पता नहीं अभी। वही एक ही एक मेजर इशू यही हो रहा है सर, वो उसका कैसा सॉल्यूशन दे दो बस। क्योंकि क्या सर, मेरे को ना बड़े क्वांटिटी में छोटे क्वांटिटी में ऐसा कुछ मैं देखा ना, मेरा साइकोलॉजी कुछ ये हो रहा है क्या, कुछ मेंटल प्रेशर आ रहा है क्या, ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है, मीन्स डिफरेंट नहीं हो रहा है कि 150 क्वांटिटी में डिफरेंट और 25,000 में डिफरेंट कुछ। ये मैं ऐसे क्योंकि कैसे हर हो बार सकता है खुद सर? को क्योंकि अगर आप जब हाँ, क्वांटिटी कम करते हो और ट्रेड करते हो, तो बेसिकली आपको ये होना ही नहीं चाहिए ना कि मैं निकलता हूँ अगर विनिंग में, विनिंग पोजीशन है तो। हाँ ना सर, क्या है, ठीक है, उसको कुछ सॉल्यूशन निकाल के नहीं वो आप अपने आप को ये समझाना पड़ेगा आपको कि विनिंग वाले में मत निकलो। और हम्म। आप सर, आप ये जो बोल रहे हो महीने में 40-45 ट्रेड, वो भी मुश्किल है। आप अगर 45 ट्रेड लोगे तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि किसमें होल्ड करना है और किसमें निकलना है? हाँ बरोबर है, एक्चुअली देखिए बहुत ज्यादा ही कम टाइम ले रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है सर, मैंने बहुत पहले तो बहुत कम ट्रेड ले रहा था, जब ये स्कैल्पिंग का दिमाग में हो रहा है ना, तब से मैं इतना ट्रेड ले रहा हूँ कि समझ में सर मैं भी इस महीने स्कैल्प ही किया जैसे मैंने आपको बोला था, बट मेरे हमेशा एक ही ट्रेड होता है, एक मैक्स दो। अभी कल इतना मूव हो रहा था तो दो ले लिया, नहीं तो कल भी यही वाले में मैं बंद कर देता था। हाँ यही बराबर है आपका, ये परफेक्ट हो रहा है सर। वही। सर आप एक दिन में कितने बार ट्रेड लेते हैं?
मैं कभी कभी मेरा पहला कभी होता नहीं था, अभी आप पूछो मत, कम से कम 15-20 तो ट्रेड हो रहे। सर वही तो एक गलत है दिन के सर, अंदर? गलत है ना सर। गलत है ना सर, दिख रहा है ना मेरे को सर। वो एक लेकिन दिन में सर, मैं मेरे से तो बस एक ही होता है, मैं एक ही लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बंद कर देता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। टारगेट एग्जैक्टली। नहीं, होता है, लेकिन ऐसा होता है, बस बंद। वो वो बेटर है ना सर, ये तो बेस्ट है ना, ये तो actually। नहीं सर, पंद्रह अभी बीस ट्रेड आप लोगे तो कितना भी धुरंधर हो सर, नहीं कर पाओगे प्रॉफिट। पक्का है, इम्पॉसिबल 15 20 ट्रेड में। एक तो आपके चार्जेस ही इतने ज्यादा हो जाते हैं, कोई कुछ कितना भी क्वांटिटी हो जाए, भले आप 75 क्वांटिटी या 80 या 90 जितना भी आप क्वांटिटी के साथ कर रहे हो, 12 ट्रेड मतलब आपको मिनिमम 7 पॉइंट तो पकड़ने हैं ब्रेक इवन रहने के लिए। हर ट्रेड में 0.5 0.6 पॉइंट चाहिए ताकि ब्रेक इवन हो, एंड अगर आप 11 इंटू 0.6 0.7 करोगे तो 7 8 पॉइंट तो आपको ब्रेक इवन करने में निकल जाएंगे। एंड अच्छा अपने निफ्टी वाले मार्केट में 7 पॉइंट चाहिए अगर आपको ब्रेक इवन करने के लिए, तो बहुत खराब रिस्क टू रिवॉर्ड है। सर, लेकिन ये पहले नहीं होता था मेरे से सर, ये जो फायर्स में जब मैं अकाउंट खोला है ना, मैं वो बंद ही कर दिया, क्योंकि वो चार्ट पे जो सेल और बाय है ना, तो ये तो नहीं, तो बजाज में मैं मोबाइल के ऐप से करता हूँ सर, वो ये तो अभी बाय जीरोधा ने सेल। भी शुरू कर दिया ना सर, चार्ट पे बाय एंड सेल। अभी सबने शुरू किया है फायर्स को, देख इनिशियली फायर्स ही देता था, बट उसके बाद से सबने शुरू किया है अभी। आप चार्ट पे बाय एंड और सेल कर सकते हो, ये आप देख रहे हो जीरोधा वाला, ये हाँ बाय एंड हाँ। सेल टैब है अभी, क्योंकि मार्केट बंद है और कोई बिड एंड आस्क वाला किस्सा नहीं है, तो ये अभी इनएक्टिव है, बट देन जैसे मार्केट खुलता है इधर बाय एंड सेल चालू हो जाता है। अभी सब लोग दे रहे हैं वो। अब वो जैसे ही आप पोजीशन लेते हो तो चार्ट पे दिखता है कि कितना पोजीशन है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और वो सब। तब आप ट्रेडिंग कम कर लो सर, 15 16 11 12 जो भी है एक दिन का, वो बहुत ज्यादा है। मैं तो बोलता हूँ आप थोड़ा ब्रेक ले लो, एक हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ता, आप एकदम ब्रेक ले लो और शांत हो जाओ, और आप 10 दिन या 15 दिन देखो भी मत मार्केट को। जब आप दोबारा आके देखोगे मार्केट को तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसा तो, क्योंकि सर ये तो आप बोल रहे हो तो बजाज में तो ठीक है, मेरे को तो कम खर्चा लग रहा है, हाँ। लेकिन फायर में तो मेरा इतना, मेरे को लगता है 7-8-10 लाख रुपए में ये 2 महीने में टैक्सेस और ब्रोकरेज में दिया रहेगा। अरे बाप रे सर, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है सर। आप जो क्वांटिटी बोल रहे हो उसमें 7 8 लाख ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा है। आप आप 2 हफ्ता छोड़ दीजिए, कुछ मत देखिए, किसी का मत सुनिए, बस 2 हफ्ता पहले आप ब्रेक लीजिए। जब 2 हफ्ते के बाद आप आओगे तो आपका पर्सपेक्टिव अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है सर। वो क्या है, इतना सर मैं अब मेरे को खुद को ही गाली इसको ये कर रहा हूँ, इतना मेरा इतना एक्सपीरियंस है, उम्र है, और वही गलती कर रहे हैं, तो कैसा होगा सर, ऐसा लगता है खुद को ही दूसरा का। और तो सर दिन तो सर दिन मैं तो 24 आवर्स अभी इसमें ट्रेडिंग में ही हूँ ना सर, बाकी तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन का मैं खुद देखते हैं नहीं, कुछ नहीं। सर और इसलिए बोल ऐसे रहा घूम। हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ सर, आपका माइंड काफी ऑक्यूपाई हो गया है ट्रेडिंग के साथ, आप छोड़ दीजिए कुछ दिनों तक। अच्छा, ओके ओके। Hi, Charabdej. I just wanted to ask that if you also do non-directional option selling. नो आई डोंट। Okay. Any particular reasons? क्योंकि उसका रिस्क रिवार्ड इज वेरी लेस। आई मीन, इफ आई डू अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, आई डोंट थिंक हम्म। आई वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर 600 पॉइंट्स दैट आई डिड दिस मंथ। हाँ, मतलब ROI तो उतना नहीं बन पाएगा ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। तो जब व्हेन आई एम, I mean, devoting myself completely to this हम्म। intraday and then all that. So my only primary objective is to achieve as big an ROI as possible. And नॉन डायरेक्शन में वो Okay. होता नहीं है। आई मीन नॉन डायरेक्शन में आप हम्म। कितना भी ले लो, आई हैव नॉट सीन, आई हैव ट्राइड नॉन डायरेक्शन फॉर अबाउट 7 8 months, हम्म। नॉट राइट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड इनटू ट्रेडिंग, बट देन हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि 3 4 महीने नॉन डायरेक्शनल दे देता है आपको, एंड देन द ROI हम्म। यूज्ड टू बी 4 5%, एंड द 1 month when the market trends तो आपका नॉन डायरेक्शनल हर बार स्टॉप लॉस देता है, Got it, got it. and then it used to मतलब take मेरा away ऐसा है one and a half कि 2 months. मेरा पैसा अभी नॉन डायरेक्शनल से ही बनता है प्राइमरली। Okay. डायरेक्शनल में इंट्राडे में मैं उतना अच्छे से व्यू नहीं फॉर्म कर पाता। मैं वीकली या बाई वीकली स्प्रेड्स लेके मेरा डायरेक्शनल वाला बन जाता है, बट Okay. इंट्राडे में भी नहीं बन पाता, इसलिए इंट्राडे में बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ मैं। बाकी Okay. प्राइमरली मेरा नॉन डायरेक्शनल से बन रहा है अभी, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क।
ओके ओके। ना आई मीन वो अपना अपना माइंडसेट के हिसाब से है। आई हाँ, मीन वही तो जैसे मैं मोस्ट। अभी उससे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे इंट्राडे में उतने अच्छे से नहीं। एंड आई ऑल्सो, मुझे मतलब लगातार चार्ट देखना वो भी पसंद नहीं अभी, तो हाँ इसलिए मैं नहीं एग्जैक्टली। करता। जबकि मेरा उल्टा है, आई मीन आई लव लुकिंग एट चार्ट्स ऑल डे। आप मुझे दिन भर बिठा के चार्ट दिखा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम्म वही प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा और अच्छे से सीखना है बेसिकली, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। अगर वो हो जाए तो बेसिकली मेरा भी आरओआई आई कैन इम्प्रूव अ लॉट। या एंड द अदर थिंग इज, जब हम लोग नॉन डायरेक्शनल ले रहे हैं, वी आर प्लेइंग इनटू बिग गाइस हैंड्स। बेसिकली हम लोग जब नॉन डायरेक्शनल बेट लेते हैं तो वन लेग इज फॉर श्योर गोइंग टू हिट स्टॉप लॉस, क्योंकि वो मूव करना चाहते हैं मार्केट को इधर अप और डाउन, वट एवर इट इज। हाँ हाँ। एंड देन अभी नॉन डायरेक्शनल के लिए, आई मीन the wicks that we are operating at and the option हम्म prices that are presently prevailing for OTM strikes, ROI तो हम्म एकदम ही कम है। I mean the amount of risk you'll have to take just to get like 2.5% ROI is too big. हाँ, मतलब है थोड़ा, बट मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इफ माय व्यूज की निफ्टी सपोज इन द नेक्स्ट वीक इज सपोज टू बी ट्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो पहले मैं ऐसा आयरन कॉन्डोर या कुछ ले लेता हूँ Okay. एंड थोड़ा उसको डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता हूँ अपने व्यू के हिसाब से कि इफ आई एम न्यूट्रल टू बियरिश, तो ऐसा थोड़ा एडजस्टेड आयरन कॉन्डोर लेके। हम्म। अभी नहीं, जैसे अभी इफ यू सी ये फॉर ये सेंसेक्स अगर फॉर आप नेक्स्ट ये वीक। अगर आप देखो, ये आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन लाइक। हाँ, अभी तो बहुत बेकार मिलेगा, ऐसे भी निफ्टी का तो नहीं, नहीं मिलेगा ये क्योंकि अगले हफ्ते का है, नॉट इवन दिस वीक। दिस इज हाँ नेक्स्ट हाँ, वीक्स वही बोल एक्सपायरी। रहा हूँ, तो ट्यूसडे तो आ ही गया ना, मतलब 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए कम है आरओआई बहुत। इफ यू सी फॉर एग्जांपल सेंसेक्स, तो उसका ठीक होगा आरओआई, उतना बेकार नहीं रहता है। हम्म। ये आप देख लीजिए, दिस वैसे इज फॉर मैं आई नेक्स्ट वीक। ट्राई टू बिल्ड पोजीशंस 1 वीक बिफोर, ऐसा नहीं कि ओके। एकदम आखिर में, सो दैट आई हैव सम टाइम फॉर एडजस्टमेंट एज वेल, कि अगर एक साइड ज्यादा नहीं लगा तो बेसिकली आई हेज दैट साइड यूजिंग अ डेबिट स्प्रेड। हम्म। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई डू। और मैं एक्सपायरी डे पे यूजुअली ये सेलिंग करके मेरा बनता है। ओके। तो व्हाट आई डू कि जब मार्केट ओपन, व्हेन व्हेन इट ओपन्स, थोड़ा सा इनिशियली 15-20 मिनट देख के, देन आई बेसिकली सेल द सायरन कॉन्डोर, थोड़ा बड़ा रेंज बना के, बिकॉज इनिशियली मार्केट का व्यू फॉर्म नहीं होता, बट एज यू प्रोग्रेस थ्रू द डे, तो ऑप्शन चेन भी डेटा आपको दिखाने लगता है कि आइडियली कहाँ पे एक्सपायरी होने का चांसेस ज्यादा है। देन आई कीप नैरोइंग दैट रेंज, ऐसा। ओके। तो दैट हैज बीन वर्किंग फॉर मी, बट लेट्स सी। जैसे बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा इंट्राडे में फिर तो नहीं कर सकते वो, बट या जब थोड़ा स्टेबल रहता है मार्केट तो। बाकी जब ज्यादा मूवमेंट हो जाता है तो आई शिफ्ट टू सिंपल स्प्रेड्स, वीकली या बाई वीकली या ओके मंथली। ओके। तो मेरा भी वही स्ट्रेटजी है। I mean, I wait for market to move, but then when I हम्म whatever spreads I do in the money. I don't do out of the money. The only difference is that. हाँ, मतलब क्रेडिट स्प्रेड मैं करता हूँ बट कम करता हूँ, डेबिट स्प्रेड ज्यादा करता हूँ अगर डायरेक्शनली है बिल्कुल तो। Hmm. मतलब डिपेंड्स कि अगर अगर इफ आई एम डूइंग फॉर अ मंथली एक्सपायरी और अभी टाइम है नया सीरीज, तो आई मतलब आई डू डेबिट स्प्रेड्स ओनली। बट इफ सपोज यू आर डूइंग 1 मंथ 1 वीक बिफोर द एक्सपायरी, तो फिर उसमें क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा करता हूँ ताकि Okay. डीके का भी फायदा मिले। इनिशियल पहले 10 दिन में तो उतना डीके होता नहीं है, मतलब कम ही होता है। हाँ, अभी विक्स ही कहाँ रह गया डीके होने के लिए। विक्स जब हाँ, 14-15 वही। के आसपास होता है तो नॉन डायरेक्शनल मेक्स अ हम्म लॉट ऑफ सेंस। हम्म जब विक्स ये 10-11 उसके आसपास होता है तो नॉन डायरेक्शनल बहुत मुश्किल। अभी तो फिर भी ठीक है, आई पहुंच वाज पहुंच के ऑल्सो 12 हो गया है। 2-3 हफ्ते तक तो हाँ 9 हाँ, 9.5 था, वो तो हद ही था नॉन डायरेक्शनल। I was also backtesting something on stock options. Do you ever trade in stock options or not? नो नो, आई जस्ट ट्रेड। Acha. So what I did was, suppose there's some earnings announcement for any particular stock. So I go through the option and check the IB. If the IB is below 25, तो basically अगले वीक जिसके भी results आने वाले from Monday to Friday, and if the option chain is liquid for that particular stock, and if that IV is below 25, I put in a portfolio straddles buy करके। ओके। तो मतलब बेसिकली मैंने आप रियल आईवी पैसे आईवी से नहीं क्रैश किया का ये, एडवांटेज लेना चाहते हो। आईवी स्पाइक का एडवांटेज लेना चाहता हूँ मैं।
आप लॉन्ग लेते हो दोनों हाँ साइड लॉन्ग कर रहा हूँ मैं स्ट्रैडल को। ओके 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 ओके। बट देन अगर तो 25 ऑलरेडी हाईवी है तो आप कहाँ तक टारगेट करते हो आईवी स्पाइक? 70 80? सिर्फ आईवी नहीं, थोड़ा डेल्टा से भी मिल जाएगा, और बाकी आईवी 25 से 30 भी चला गया तब भी फायदा है मुझे। ओके मतलब 25 इज वेरी नॉर्मल लेवल अगर इवेंट के थोड़ा पहले आप ले रहे हो तो, क्योंकि 30-35 तो ऐसे ही चला जाता है स्टॉक आईवीज, मतलब ओके। जितना एंड मैंने अभी देखा है। you only target those scripts which are going to come out with results in the next 1 week or so. हाँ मतलब आई वाज जस्ट बैक टेस्टिंग दिस तो 3 out of 2 times, मतलब 2 out of 3 times it worked for the past 3 weeks basically. ओके नहीं, आप बट वही है पास्ट कि इसमें पास्ट 3 वीक जब बोल रहे हो तो इट्स अ वेरी अनफेवरेबल टाइम टू बैक टेस्ट। आप वैसे टाइम पे बैक टेस्ट करो जब मार्केट वाज नॉट मूविंग एनीवेयर। मतलब ये तो मैं लाइव बैक टेस्टिंग कर रहा था बेसिकली ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में डाल ओके के। ओके अभी जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ देन आई डिड, तो बेसिकली मतलब इसमें वही है। बट अभी थीटा डीके का है नहीं तो आईवी इफ यू बाय ऑप्शंस एट अ डिसेंट आईवी लेवल तो, और थोड़ा भी डेल्टा का एडवांटेज मिल गया, देन इट शुड आइडियली गिव यू सम रिटर्न। एंड देन हाउ डू यू डिटरमाइन व्हेन टू एग्जिट? एंट्री के पैरामीटर्स आपके डिफाइंड है कि रिजल्ट आने चाहिए, आईवी होना चाहिए, एंड देन यू गो तो टू यूजली लॉन्ग वो स्ट्रैटेजी। रिजल्ट के बाद अगर स्पाइक मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आई एग्जिट, क्योंकि अगर स्पाइक आना होता है तो रिजल्ट अनाउंसमेंट के अगले दिन आ ही जाता है। यस फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी कल ही आया ना, यस तो इट वाज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड द वॉल्यूम वाज स्पाइकिंग थोड़ा, मतलब वो सब टेक्निकल्स भी देख लेता हूँ मैं कि नहीं, इफ मतलब इट इज मैं ये समझना चाहता हूँ कि समझ लीजिए आप कोई एक स्क्रिप्ट का लॉन्ग स्ट्रैडल बनाए हो एंड द प्रीमियम दैट यू पेड फॉर दैट लॉन्ग स्ट्रैडल इज लेट्स से 40 रुपीज। तो आपका कोई 1:2 या 1:3 टारगेट रहता है कि नहीं, स्पाइक आने वैसा के बाद? टारगेट मैं नहीं रख करता, ओके मतलब वो रख के करना उसमें मुश्किल है। ओके अगर जो भी रिजल्ट के बाद स्पाइक मिल गया डेल्टा में या आईवी वाइज तो यू एग्जिट, क्योंकि वो स्पाइक फिर कम हो जाएगा, वो आईवी फिर से अपने उस पे चला So जाएगा, वापस चला जाएगा। what you are saying is irrespective of whether it moves or not, just after results you will exit. हाँ Okay. क्योंकि सबसे बड़ा मूव अगर आइदर स्पाइक इन डेल्टा की वजह से या आईवी की वजह से वो अगले दिन आ जाएगा, अगर आना होगा तो। नहीं आया तो यू एग्जिट, क्योंकि फालतू फिर वो आईवी क्रैश की वजह से आपका प्रीमियम डीके ही होगा। Yeah. After the event तो वही होना है। हाँ तो अगर आप if it is possible ये आप रिकॉर्ड करके if you can share with us also in coming months or so, हाँ some श्योर of श्योर some of श्योर। the other participants also might be interested in doing this. जैसे वहिष्कार ओके साहब जो है वो तो सिर्फ स्टॉक्स में करते तो शायद उनको अच्छा लगे। ओके नहीं सर, मैं भी उसमें करता हूँ ये बैंक निफ्टी में, लेकिन वो मेरा पोजिशनल होता है सर, मंथली ओके वाला। ओके ओके सर एक और चीज मुझे पूछनी थी, ये सर ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट पैटर्न बनते हो, जैसे दूसरे जैसे जीरोधा में अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट, कुछ डिफरेंट भी दिखता है आपको कि कभी एक जगह दिखा डिफरेंस है डिफरेंस है। इनिशियली फॉर द फर्स्ट कैंडल तो पक्का हमेशा फर्क रहता है। ओके, क्योंकि सर धन वाले में मैं ये बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो कोई और भी इसे सेंस करता है नहीं करता है। मैंने इस महीने जो मतलब लॉस ही गया पूरा महीना मेरा, लेकिन इसमें दो ऐसे ट्रेड थे जहां पर मैंने देखा था जो पैटर्न मेरे ट्रेडिंग व्यू में बने थे वही सेम पैटर्न उसमें नहीं बने, मेरे क्या कहते हैं धन के चार्ट में नहीं बने थे, वो भी ट्रेडिंग व्यू के ही उससे, तो उसमें मैंने लॉस लिया था। और तो फिर ये ये सेम ये जो आप बोल रहे हो पैटर्न, ये क्या दिन के स्टार्टिंग में है या मिडिल ऑफ द डे नहीं भी आप सर, बोल रहे हो? इन द मिडल ऑफ द डे सर। The middle of the day zero और trading में कभी कुछ difference नहीं है। The only difference that I see is the first 1-2 candles, that's it. ओके सर, क्योंकि मैंने देख रखा है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसको पूरा कि मैं किस Okay. पैटर्न की, जो मैं ग्रीन ग्रीन और रेड रेड नहीं कहता हूँ सर, दो ग्रीन हाँ दो रेड वाला हाँ पैटर्न, हाँ तो वो जब मैं जो ट्रेडिंग व्यू में बनता है उसके बेसिस पर जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो धन वाले उसमें वो सेम नहीं बना हुआ था, तो उसके वजह से इस महीने मैंने 2 या 3 बार उसकी वजह से लॉस लिया था। और फिर इसी हफ्ते थर्सडे को शायद से HDFC में, मैं आपको भेज दूंगा वो पैटर्न भी, ओके। तो उसमें देखा था मैंने ट्रेडिंग व्यू में जो पैटर्न बना था मेरा वो एग्जैक्टली सेम जीरोधा, सॉरी क्या कहते हैं धन वाले उसमें नहीं बना हुआ है, वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही जो था। बट शायद ये जीरो जो और ट्रेडिंग ब्रोकर्स व्यू है में ना उसको ये करना पड़ता है, शायद कंट्रोल रिफ्रेश करना पड़ता है यस कंटिन्यूस सर, टाइम। मैंने वो भी करा था, मैंने सब करा था, ये आप जो कह रहे हैं ना ये सब करा था, तो
जो पैटर्न मेरे ट्रेडिंग व्यू में बने थे जिसके बेसिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ वो सेम पैटर्न एग्जैक्टली पैटर्न उसमें नहीं बनाता। ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा सर एक बार। ओके, क्योंकि ये मेरा हमेशा, मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि एक मेरे टैब पे हमेशा ट्रेडिंग भी ओपन रहता है, एक मेरे टैब पे हमेशा जीरोधा ओपन रहता है। तो कभी मुझे ये वाला डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा है कि ट्रेडिंग व्यू में एक पैटर्न है एंड जीरोधा में एक पैटर्न। अगर आप ये मैं देखोगे आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा सर। हाँ। सर मीन्स किसी को ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा तो एक दो तीन ट्रेड दिखाए ना आपने लिए वाला आज ये हफ्ते से। तो कल वाला तो मैंने आपको बताया था, जैसे कमेंट में बोला था वैसे ही किया है। रिवर्सल मारा, डे है नहीं आया तो ट्रेड एग्जिट हियर क्योंकि रिट्रेस मार रहा है, एंड क्योंकि ये वाले क्लोज का नीचे ब्रेक कर रहा था तो एंट्री हियर एंड देन एग्जिट समवेयर क्लोज टू हियर। तो ये कल का ट्रेड हो गया। ये वाले दिन आई डोंट थिंक मैंने कुछ ट्रेड किया, कुछ पैटर्न दिख ही नहीं रहा था, ना इधर दिख रहा था ना ऑप्शन चेन में दिख रहा था, तो ये वाले दिन कुछ ट्रेड नहीं। एंड ये वाला भी मेरे ख्याल से मैंने कमेंट में बोला था कि एनी डिप टुवर्ड्स 950 टू 970 जोन्स खरीदना है, बोला था ना कमेंट में। ये कौन सा डे है? 29 अक्टूबर। हाँ, तो 29 अक्टूबर में यही बोला था कि इफ निफ्टी गिव्स अ डिप टिल 25 950 टू 970 विल ट्राई टू बाय फॉर पीडीएच। तो यही किया था मैंने, यहाँ पे 950 टू 970 दो तीन बार टेस्ट कर गया था, आई एंटर्ड हियर। है वो इसका लॉजिक वही सर, लॉजिक ही बताओ मुझे। अच्छा, ये लेवल क्यों दिया था और ट्रेड क्यों किया था हाँ इसलिए? हाँ मीन्स क्यों आपने ट्रेड क्यों लिया और किधर लिया, बस बेसिक वही है। मेरे ख्याल से ये वाले दिन ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि प्रीवियस डे द वॉल्यूम प्रोफाइल शोड मी मैक्सिमम कंसंट्रेशन देयर। हाँ, ये आप देख रहे हो, प्रीवियस डे इतना वॉलेटाइल होने के बाद भी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डे वाज एट दिस लेवल 25,950। इसके लिए मैंने कमेंट में डाला था कि एनी डिप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल 950 टू 970 आप ले लो। एंड देन इसके अलावा ये वाले लेवल पे देर इज दिस पीक एंड देर इज दिस क्लोजिंग, तो ये लेवल तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया। अगर आप इसको हटा दोगे, एक तो कंसंट्रेशन ये वाले लेवल पे है, यहाँ पे जब इनिशियल ब्रेकआउट दिया था यह वाला पे सपोर्ट लिया, वापस यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, वापस यहीं पे क्लोज किया, तो बेसिकली दिस लेवल सॉर्ट ऑफ एक्टेड एज ए पिवट। एंड क्योंकि अगले दिन थोड़ा सा गैप अप खुला था तो मैंने बोला कि जैसे ही ये लेवल पे आते वापस खरीद लो, तो मैंने यहाँ पे खरीदा। एंड मैंने ये भी बोला था कि पीडीएच पे निकलना है, तो आई एग्जिटेड एट पीडीएच ये वाले लेवल पे। दिस वाज दिस डे एंड देन ये 28। वॉल्यूम प्रोफाइल का किधर ट्रेडिंग व्यू में कहाँ से आप पिक कर रहे हैं सर? ये जो टूल बार आता है वो जो लेफ्ट में आपका, नहीं आ रहा है वो मेरे इसमें तो ऐसा नहीं है। ये टूल बार नहीं दिख हाँ रहा है? फोरकास्टिंग एंड मेजरिंग टूल, ओके ओके। उसमें ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा फिक्स रेंज वॉल्यूम, ओके ओके। हाँ और दूसरा बोल दो सर। तो ये वाला दिन तो वैसे ट्रेड किया था। देन 28 को ट्रेड किया था क्या? 28 आई डोंट थिंक आई ट्रेड, क्योंकि 28 मोस्टली सेल साइड ट्रेड्स थे एंड 28 में मैंने कमेंट किया था कि सेलिंग नहीं करने वाला मैं आज, तो आई थिंक आई हैव नॉट ट्रेडेड ऑन 28। 28 इज एक्सपायरी, तो उस दिन ट्रेड नहीं हुआ। ये वाले दिन भी ट्रेड नहीं हुआ बिकॉज खुलते ही ऊपर भाग गया, देयर वाज नो पैटर्न नथिंग। आई थिंक आई हैव स्कैल्प्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ा सा, यहाँ पे एंट्री मारा एंड देन एग्जिट सेम कैंडल एंड पे। दिस वाज प्योर प्रॉपर स्कैल्प, एक दो मिनट इन एंड आउट, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज 24th। One second. 24, वॉल्यूम प्रोफाइल पिवट और क्या देखते सर दो रोज? नहीं, मैं तो रोज सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल देखता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड प्राइस एक्शन। जैसे मैंने बताया था आपको, ये सीपीआर लेवल्स आई यूज फॉर एग्जिट्स नॉट फॉर एंट्री। ओके। एंट्री तो सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। 24th को दिया था क्या ट्रेड? अभी इससे ज्यादा पीछे याद नहीं आ रहा सर। एक काम करता हूँ, कल से जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा एंड ऑफ द डे, दैट विल बी आई थिंक यूजफुल। ये वाला तो क्लियर था, यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे ट्रेड लिया एंड देन पीडीएच पे एग्जिट।
ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। हाँ, ये तो अब मेरा फेवरेट है, स्विंग। ये वाले पे लिया था मैंने। मैं ये ऐसा पैटर्न बोला था मेरे ख्याल से, इस दिन तो मैंने होल्ड करने के लिए बोला था मेरे ख्याल से, 17 अक्टूबर बोला था ना। मीन्स ये पैटर्न जो बोल रहे सर आप, डिप होके जो हाई ब्रेक करेगा वो लास्ट हाँ लास्ट डे का। हाँ, ओके और बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेक करता है, तो दिस इज लाइक माय फेवरेट पैटर्न। ऊपर ऊपर खुलता है, पीडीएच ट्राई मारा, एक कैंडल पे सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे है, एंड देन तुरंत ऊपर चला जाता है। ओके। तो मैंने यहाँ पे लिया, एंड देन आई थिंक पूरे यहाँ तक होल्ड मारा, ऊपर तक। जब एम पैटर्न आया था, ये मैं निकला था, हाँ ये याद भी है। ये क्यों निकला था कि स्पॉट में आपको एम पैटर्न दिख रहा है, बट कॉल में तो ये दूसरा वाला जो लेग है वो ऊपर आया ही नहीं है, वो इधर इधर से ही आ गया था, तो डाइवर्जेंस भी था। एक तो सीपीआर का रेजिस्टेंस है, ऊपर से एम पैटर्न है, और ऊपर से कॉल में यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था, तो मैं यहाँ पे करीब निकल गया। दैट वाज इट। उससे पुराना तो सर अभी याद नहीं है, ट्रेड्स सब नहीं कहाँ ठीक, थे। मीन्स तो आपका बेसिक एक्चुअली अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक हर चीज का, तो तो वो तो डे टू डे मेरा लॉजिक चेंज होता है, इट्स नॉट अ हाँ कांस्टेंट सेटअप। वही मैं देख नहीं, ठीक है ना सर, दो चार आपके पैटर्न भी समझ में आए हमको तो पर उसमें हेल्प हो जाएगा। Yeah. Okay. So anybody, anything else, or shall we close it for today? Fine then. चलो सर, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू गैस। थैंक यू सर। इसका तो ये डाल रहे हैं ना, क्योंकि मैं पहले 15-20 मिनट या मिस वो आपके आने से पहले ऐसे भी कुछ शुरू हुआ नहीं था, मैं पोस्ट कर ओके। नहीं एक्चुअली भूल ही गया, मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मेरे को दूँ। लगा 3:30 तो मैं ऑफिस आ रहा था सर, उसके लिए आज चीज के लिए, इसे तो मैं ओके सर, ओके। ओके थैंक यू। बाय सर।